ساجد خرچ رشیدی کرتے صاحب، ہیں. جی جی. ساجد رشیدی صاحب، میں چونکہ عالمی اس پہ بات کر رہا ہوں، کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جو بڑی بڑی تنظیمیں، چاہے یو این او ہو، او آئی سی ہو، یہ سب بیکار ثابت ہو رہے ہیں، سب خاموش تماشائی ثابت ہو رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ہے. لیکن کیا اس 5 مہینے کی یہ جنگ ہو گئی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کہیں سے کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، یو این او کا چودھری کون ہے؟ امریکہ. یوکرین میں اور فلسطین میں جو لڑائی چل رہی ہے اس کو چلانے والا کون ہے؟ امریکہ. آپ کو یاد ہوگا یو این او میں یہ مسئلے اٹھے کہ بھئی فلسطین کو باقاعدہ ریاست کا درجہ دیا جائے، لیکن مانے گا کون؟ سوال یہ ہے کہ مانے گا تو امریکہ مانے گا نا اس کو. یو این او کو چودھری ہی وہی ہے، اس کے پاس واک آؤٹ کا حق حاصل ہے اس کو. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، جو کرنے والا ہے وہ کمبکرن کی نیند سویا ہوا ہے. آرگنائزیشن کیا کریں گی؟ جن آرگنائزیشن کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کی مانسکتا اچھی نہیں ہے، ان کی سوچ اچھی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، تو آرگنائزیشن کیا کریں گی؟ آپ مجھے دیکھیے، تمام ملکوں میں فلسطین کو لے کر جس طرح سے پروٹیسٹ ہوئے، جس طرح سے لوگوں نے کہا کہ فلسطین کی جنگ بندی ہونی چاہیے، فلسطین میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، اسرائیل کو روکنا چاہیے، اسرائیل غلط کر رہا ہے، اور کس طرح سے نعرے بازی ہوئی، خود اسرائیل میں بھی ہوئی. لیکن سب نے کہہ دیا کہ نہیں. امریکہ نے بھی کہہ دیا. آج امریکہ کے ایک اس کا ممبر پارلیمنٹ کا بیان آیا، بڑا بے بیان، بڑا بے بیان. یعنی مسلمانوں کو تو اتنا ہلکا، اتنا آسان چارہ سمجھ لیا لوگوں نے، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو، چاہے انڈیا میں بیٹھا ہو، مسلمان کے خلاف بول دو اور راتوں رات جو ہے ہیرو بن جاؤ. اس طرح کی سوچ لوگوں کی بن گئی، اس طرح کی مانسکتا بن گئی. اور ایک بڑی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے چینل پہ، اسلام اور مسلمان آج پوری دنیا میں محو مرکز ہے. ساری دنیا میں کسی چیز پر بات نہیں ہو رہی ہے، اسلام اور مسلمان پر بات ہو رہی ہے ساری دنیا میں. آپ دیکھ لو، امریکہ سے لے کر ہندوستان تک جہاں بھی بات ہو رہی ہے وہ اسلام اور مسلمان کی ہو رہی ہے. جتنے بھی یورپین دیش ہیں جو اسلام مخالف ہیں، ان میں نظریے کی جو بات ہے، وہ کاروبار کی بات ہے، نوکریوں کی بات ہے، وہ نہیں ہو رہی ہے. ہاں، قرآن جلایا جا رہا ہے، محمد صاحب کے بارے میں غلط باتیں کی جا رہی ہیں. یہ ایک نیریٹو پوری دنیا میں سیٹ ہو گیا ہے کہ اب جو ہے صرف ایسا لگ رہا ہے جیسے کفر و اسلام کی جنگ کہیں نہ کہیں دوبارہ شروع ہو جائے پوری دنیا میں. اس طرح کے حالات لوگ بناتے جا رہے ہیں. حالانکہ امن پسند لوگ بھی ہیں، یورپ میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ امن پسند ہیں. آپ نے دیکھا فلسطین کے حق میں کتنے ملکوں نے جو ہے باقاعدہ ان کی عوام نے حتیٰ کہ امریکہ کے اندر بھی مظاہرے ہوئے، انگلینڈ کے اندر ہوئے، اور جتنے بھی فلسطین کے مخالف اور اسرائیل کے ساتھی دیش ہیں، میں سمجھتا ہوں تمام دیشوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوئے. لیکن 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 ایک منٹ، فائدہ کچھ نہیں. یہ ساجد رشیدی صاحب، کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ٹرکی جیسے ملک جو بہت طاقتور ملک ہیں، یو اے ای ہے، یا ہم مصر کو لے لیں، ان تمام یہ جو ملک ہیں، کم از کم جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان تک کھانا پہنچانے کا کام کریں؟ اور پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مطلب کہاں کس بات کا ڈر ہے، کیا ہے؟ جب تمام لوگ جو ہے آواز اٹھا رہے، کھانا پانی پہنچانے میں کون سا ڈر ہے؟ دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج امریکہ کے ایک رکن پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ فلسطین میں، غزہ میں ایک بھی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ اتنا بھیانک بیان ہے. اور یوں سمجھ لیجئے سارے مسلم دیش، 57 مسلم ملک بالکل خاموش ہیں. ان کے منہ میں دہی جم گئی، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. چاہے وہ طیب اردگان ہو، یا سلمان ہو، یا کوئی بھی ہو جو اپنے آپ کو ہتیشی کہتا ہے فلسطین کا، سارے خاموش ہیں کہ بھئی ایسا بیان کیوں دے دیا گیا اور ایسا کیوں ہو رہا. آپ نے جیسے کہا کہ کھانا پانی دینے میں یہ تو امدادی چیزیں ہیں، یہ تو ہر جگہ، یہ تو حق ہے ہر انسان کا دنیا میں. کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کیسا بھی ہو، اس کا حق ہے رائٹ ٹو فوڈ. اور وہ حق اس کو یا تو اس کے دیش میں ملے، اگر اس کے دیش میں نہیں مل رہا ہے تو دوسرے دیشوں کو یہ ادھیکار ہے
यूएनओ के चार्टर्ड के हिसाब से कि वहां वो इमदादी स्कीमें भेज सकते हैं, और भेजी है लोगों ने पहले भी। लेकिन मसला ये है कि हर मुल्क जो है कहीं ना कहीं अमेरिका से डरा हुआ है, इस्लाम को कम और अमेरिका को ज्यादा मान रहा है। सारे इस्लामी मुल्क जितने हैं अमेरिका को मान रहे हैं ज्यादा। वो देख रहे हैं कि भाई अगर कहीं इसकी नजर टेढ़ी होगी हमारी तरफ से तो फिर हमारा नामो निशान नहीं बचेगा, ये सोच पैदा हो गई। इसलिए जो है इमदाद देते हुए, देखा नहीं आपने, जब लड़ाई हो जाती है आपस में हमसायों में, तो फिर घर का कोई भी फर्द भले ही उससे मोहब्बत करता हो दरपर्दा, लेकिन उसको मदद देने को कतराता है, आंख चुराता है, डरता है। यही सेम पोजीशन है सबकी। हालांकि पता है कि इसके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी नहीं तो मदद करने को सामने नहीं आता आदमी। नहीं, ये बिल्कुल सही है। एक हमारे साथ कई लोग जुड़ गए हैं, मतलब जो सवाल भी कर रहे हैं, मोहम्मद वैस सिद्दीकी, कि लगता है पूरी दुनिया में जंगल का कानून है, राज कायम हो गया है, अमेरिका जंगल कानून का जनक है, अब दुनिया में यही कानून चलेगा। इंसान, क्या आपको इसके अलावा मदर रिजवी साहब ने लिखा कि जिस तरह हमास का साथ ईरान और सीरिया, यमन, इराक दे रहा है, सऊदी अरब क्यों नहीं दे रहा है, मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया हुआ इजराइल ने, और तुर्की साथ नहीं दे रहा है, तो ये क्या लग रहा है आपको कि अगर, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर फिलिस्तीन हाथ से चला गया, जबकि अभी एक खबर ये भी आ रही है, यूनुस साहब ने लिखा है कि अमेरिका अपनी बात से पलटा, अमेरिका का कहना है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे। ये खबर जो अब अमेरिका ने भी, अभी इजराइल में हुआ, अब अमेरिका ने, तो क्या लग रहा है कि ये कब्जा करके क्या इजराइल सुकून से रह पाएगा, और क्या तमाम जो अरब ममालिक है वो खामोश रहेंगे? साजिद रशीद साहब, देखिए, जो हिस्ट्री बताती है कुर्ब क़यामत की जो अलामतें हैं, उनमें से ये भी है कि टर्की भी हाथ से जाएगा। ऐसा नहीं कि टर्की बच जाएगा। ये जो इस्लामी मुल्क हैं, आप देखिएगा नुज़ूल मेहदी से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले ये सारी चीजें होनी है। उसके बाद में जो कुछ होगा वो दूसरी बात है, लेकिन एक पार्ट ये भी है, और एक अकीदा हमारा ये भी है कि कयामत जब आएगी जब एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में मौजूद नहीं होगा। जब तक एक भी होगा कयामत नहीं आएगी। अब समझ लीजिए किन हालात से दुनिया को अभी गुजरना है, क्या हालात पैदा होने हैं और क्या होने जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ऐसी नहीं है कि भाई हम सिर्फ इनको सरसरी बातें समझकर छोड़ दें। ये कुर्बे कयामत की अलामतें हैं, ऐसा होना है। और सारे देखिए 57 इस्लामी मुल्क तमाशाई बने बैठे हैं। अगर ये 57 के 57 एक हो जाएं, 57 छोड़िए इनमें से आधे भी एक हो जाएं, आधे को भी छोड़ दीजिए इनमें से एक तिहाई एक चौथाई भी एक हो जाएं, तो अमेरिका क्या है उनके सामने? कुछ भी नहीं है। लेकिन अमेरिका ने तमाम मुस्लिम देशों में, अक्सर मुस्लिम देशों में अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं। उनको राशन वही देता है, मुस्लिम मुल्कों को कर्जा देता है, हथियार देता है, सब कुछ देता है। यानी ऐसा है कि जैसे वो मुस्लिम मुल्क अमेरिका के मरहूने मन्नत हैं, अमेरिका के बगैर उनकी जिंदगी नहीं चल सकती। इसलिए वो खामोश बैठे हैं, तमाशाई बने हुए हैं। इस्लामी, जैसे एक जमाना था, लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने 800 साल इस्लामी हुकूमत की है। वो 800 साल जो मुसलमानों ने हुकूमत की है, वो इस्लाम के नाम पर नहीं की, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए की है, और वर्चस्व बढ़ाया। आज भी सेम यही पोजीशन है। जितनी ये इस्लामी नाम के मुल्क है ना, इनमें इस्लामी बादशाह थोड़ी है। अब आप देखिए सऊदी अरब बचा हुआ था, वो भी कहां चला गया? वो भी चला गया। वो कह रहा है कि मैं भी जमहूरी मुल्क की तरफ जा रहा हूं, मैं इस्लामी कानून को छोड़ रहा हूं। और बहुत सारे मदीने पाक जैसी जगह में उन्होंने मल्टीप्लेक्स जो है सिनेमा खुलवा दिए, और न्यू सिटी बनवा रहा है जिसमें सारी चीजें, अय्याशी के सारे सामान होंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये कुर्बे कयामत की अलामतें हैं। और फिर वही बात होगी कि नहीं तो काबे एक के। मिनट। जी 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 जी, बताइए बताइए। ये हमारे लखनऊ से जुड़े हुए हैदर अब्बास रिजवी, उन्होंने कहा है कि क्या मुस्लिम ममालिक के अवाम जो हैं वो तख्ता पलट नहीं कर सकते ऐसे हुक्मरानों को? क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा कुछ है?
देखिए एक और जड़ की बात मैं आपको बताऊं, हम्म, मुमताज रिजवी साहब, हम्म, तख्ता पलटने की बात वो कर सकते हैं जिनमें इस्लामी पावर हो। हम्म, आज मुसलमान की हालत तो देखिए आप क्या है। मुसलमान सऊदी में बैठा हुआ है लेकिन डरा हुआ है, मुसलमान इराक में बैठा हुआ है लेकिन डरा हुआ है, तुर्की में बैठा हुआ है लेकिन डरा हुआ है। वो अल्लाह से नहीं डर रहा है, वो दुनियावी हालात से, मरने से डर रहा है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। अब देखिए, हमास और फलस्तीन के कुछ लोग, उन्होंने सर पे कफन बांध लिया, वो डरे नहीं तो लड़ रहे हैं वो इसराइल के साथ में। निडरता ये होती है। उन्होंने ये तक कहा कि भाई आप हमें फौज ना दो तो कम से कम सामान तो दे दो। उनको सामान देने को कोई तैयार नहीं, फौज देने को कोई तैयार नहीं। कुछ लोग हैं जो मदद कर रहे हैं लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। और जो लोग मदद कर रहे हैं वो भी अलल ऐलान नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जरूर, लेकिन वो भी एक तरह से दरपर्दा ही मानी जाएगी। खुलकर इसको नहीं कहा जा सकता। अगर खुलकर होता तो हमास के साथ आकर इसराइल में जंग, फलस्तीन में जंग लड़ी जाती है गजा के अंदर। लेकिन ये सारी बातें घर बैठे हो रही हैं। मुसलमान ईमानी एतबार से इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है, जो जिस वक्त में आपका, अल्लाह भला करे मेरे जहन से नाम निकल गया, जब आखिरी खिलाफ फतह हुआ मुस्लिम ममालिक का, गरनाता जिसको बोलते हैं, जब वो फतह हुआ तो मुसलमानों की ये पोजीशन थी, एक वाकया मैंने पढ़ा तारीख में, कि रास्ते में चलते हुए एक नौजवान, रास्ते पे चलते हुए जा रहे थे कहीं, तो सामने से एक बुढ़िया आई, बिल्कुल ज़ईफ नातमा, 65-70 साल की। उसने कहा भाई तेरा क्या नाम है? तो उसने डरते हुए नाम बता दिया कि मैं, अच्छा मुसलमान है, रुक अभी मैं तुझे कत्ल करती हूं। और उसने देखा कि उसके बाद कत्ल करने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने बोला नौजवान तू यहीं खड़ा रहे, मैं घर जाती हूं, तेरे कत्ल करने का सामान लाती हूं, तुझे कत्ल करूंगी। तो इतना मरूब और इतना मायूस हो चुका था उस वक्त नौजवान, वो बुढ़िया के जाने के बाद भी भागा नहीं वहां से जान बचाने के लिए, उस डर और रौब की वजह से वहीं खड़ा रहा। बुढ़िया सामान लेकर आई और उसको कत्ल कर दिया। तो जब ईमान इंसान की जिंदगी से निकल जाता है, उस वक्त में ये नाउम्मीदी आती है, जिसको हदीस में कुफ्र कहा गया कि नाउम्मीदी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। ईमान वाला कभी मायूस नहीं हो सकता, ईमान वाला कभी नाउम्मीद नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ और दुनिया का खौफ एक जगह जमा नहीं हो सकता। या तो अल्लाह का खौफ रहेगा इंसान के दिल में, या दुनिया का खौफ रहेगा। अगर अल्लाह का खौफ है तो दुनिया का खौफ नहीं आ सकता, दुनिया का खौफ है तो अल्लाह का खौफ नहीं आ सकता। तो आज ये मुसलमान के साजिद दिल से रशीदी अल्लाह का साहब, खौफ निकल गया। साजिद रशीदी साहब, जो फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं या जिस तरीके से लेबनान के लोग लड़ रहे हैं, यमन के लोग लड़ रहे हैं, सीरिया को, इनको आप क्या कहेंगे? कैसे इनको देखते हैं जिस तरीके से पूरी देखिए, मजबूती से टिके हुए? देखिए 3 मुल्क है, 3 मुल्कों का नाम लिया जाता है, ईरान, लबनान और यमन। अगर ये तीनों मुल्क भी एकजुट होकर हमास के साथ और फलस्तीनियों के साथ आ जाएं, तो इसराइल की क्या ताकत है भाई कि वो ठहर जाए इनके नहीं तो सामने? इसराइल कहाँ ठहर रहा? अभी तो अमेरिका है, ब्रिटेन, ये सब लड़ रहे हैं। अमेरिका नहीं, लड़ लड़ रहा है, रहे हैं, ब्रिटेन लड़ रहा है, लड़ रहे हैं। फ्रांस। देखो, जितने भी इसराइल के हवारियीन हैं, वो उसको जान से, माल से पूरी 100% मदद दे रहे हैं। आप देख रहे हैं उस बात को, 100%। ये जो तीनों मुल्क लड़ रहे हैं, इनमें से गुट लड़ रहे हैं, मुल्क नहीं लड़ रहे हैं। आप समझिए बात को। लबनान में एक गुट है हिजबुल्लाह, जिसको कहा जाता है कि संचालित करता है ईरान। और यमन में एक गुट है हौसियों का गुट, जिसको, जो सरकार की उससे नहीं लड़ रहा है, वो गुट अपने हिसाब से लड़ रहा है। तो ये गिरोह हैं, ये जमातें हैं जो उनका साथ दे रही हैं, और वो भी साथ ऐसे नहीं दे रही। देखिए, साथ देना दो तरह से होता है। एक तो ये होता है कि भाई आप जो है, आपका और उसका दुश्मन एक है, तो एक ढेला हम मार रहे हैं, एक ढेला वो मार रहे हैं, ये एक लड़ाई होती है। एक लड़ाई ये होती है कि साहब आपने कंधे से कंधे मिलाकर आप बाकायदा जंग लड़ रहे हैं, और टारगेट आपका एक है, दोनों का। तो यहां कहीं ना कहीं चूक हो रही है इस लड़ाई में।
अगर ये तीनों भी एक जगह मिल जाए, हमास, हिजबुल्ला और हौसी, ये तीनों एकजुट होकर एक साथ हमला करें तो भी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन वो अलग अलग कर रहे हैं। हिजबुल्लाह अपने नहीं, हिसाब से हमला कर रहा है, एक साथ हौसी कैसे कर दें? नहीं, एक साथ कैसे कर दें? एक साथ ही तो कर रहे एक हैं, साथ अलग ऐसे अलग। कर दें। नहीं नहीं, देखिए, एक साथ एक ऐसे साथ कर कैसे दें, जमा हो जाए? सुनिए मैं बताता हूं। एक साथ ऐसे कर दें जैसे अमेरिका ने अपनी फौज भेजी है, इंग्लैंड ने अपनी फौज भेजी है इजराइल में लड़ने के लिए, और दूसरे मुल्क इनको फौज भी दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं, और पैसा भी दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं। यहां हमास को क्या मिल रहा है? भाई लबनान में हिजबुल्लाह जो है वो अपने तौर पे नहीं तो अपना पैसा बगैर खर्च करके हमला बगैर कर रहे मिले, नहीं नहीं, बगैर मिले इतने दिनों से जिस तरीके से लड़ रहे हैं साजिद रशीदी साहब, हमास जो लड़ रहा है, कहीं ना कहीं से तो सोर्स आ रहा है ना। 5 महीने की जंग हो गई आप देखिए, और अभी तक हैं। देखिए, हमास को ये लोग पकड़ नहीं पाए। और दूसरे हिजबुल्ला जिस तरीके से यमन भी जो है वहां पे हौती जिस तरीके से, और यमन भी साथ में, हुकूमत भी वहां की साथ आ गई है। इसी तरीके से सीरिया आप देखिए, तो ये तमाम जो है, बहरहाल चलिए, बहुत देर हो रही है, वो साजिद रशीदी साहब, और यहीं पे जी हम रोकते हैं, चूंकि गुफ्तगू 1 घंटे से ज्यादा की हो गई। हाँ, फिर तमाम लोग इंशाल्लाह हमसे करेंगे। जुड़े, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया साजिद रशीदी साहब, कि आप हमसे जुड़े और अपनी बात की। इंशाल्लाह फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, और तमाम इंशाल्लाह। लोग जो हमसे जुड़े, जिन्होंने सवाल किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।